it is very relevant that we are talking of this idea of Vishwaguru when we are celebrating 75 years for independence. आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम लोग मना रहे हैं और अमृत काल जो नेक्स्ट 25 साल जो अभी अमृत काल कहा जा रहा है 2047 में 2047 when we will be celebrating 100 years of our existence as an independent nation. Definitely, we will be one of the most advanced nations in the world. There is no doubt about it. I don't have an iota of doubt in my mind that by 2047 we will be truly a Vishwaguru and one of the most advanced nations. Now, when I say advanced nation, I do not necessarily mean it in the military sense. Now, अभी मेरा एक्सपर्टीज चाइना पे है. मैं ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री फोरम में तिब्बत का नेशनल कन्वीनर भी हूँ. फिलहाल मैं ताइवान में गया था 6 साल के बाद. I literally fought government of India to go to Taiwan in the month of October. So I do not wish to see India as a belligerent power, as we see China, the world bully today. Rather, हमारा जो शक्ति है, हमारा जो वर्ल्ड में जो पावर प्रोजेक्शन है, that is largely because we are a benign power, we are a soft power. सॉफ्ट पावर्स के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी होगा. प्रोफेसर जोसेफ नाई फ्रॉम हार्वर्ड इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट एंड आई हैव द गुड फॉर्चून टू बी स्टूडेंट एज वेल. सो हार्ड पावर सबको पता है. मिलिट्री, आई स्पोक अबाउट द मिलिट्री माइट. इकोनॉमिक पावर, आज यूएसए इज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, चाइना इज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर. चाइना का जीडीपी इज 5 times ours एंड द वे चाइना इज बिहेविंग as a school bully, it's largely because of its economic might. Militarily, we are at par with China, but economically, it's 5 times our GDP, 5 times our economic might, and this is why we are lagging behind. So soft power के बारे में, लेकिन इंडिया के बारे में जब बात होगी या होती है, तो soft power की ही हमारी जो strength है, that is our 5,000 years old civilization, our spiritual heritage, our cultural values. The fact that we are the oldest democracy in the world, लोकतंत्र की जननी कहते हैं हमारे देश को. We are the largest democracy in the world. 80 करोड़ 70 करोड़ लोग वोट देते हैं इलेक्शंस में, which is more than the population of entire Europe. So this is not a small feat. Non-violence, one of the greatest gift of India. We might have different views on Mahatma Gandhi's contribution to freedom struggle and other aspects of his philosophy, but nevertheless I believe that non-violence is one of the greatest strength of our soft power. Bollywood, yoga, हमारा Indian cuisine, Indian dances, classical dances, multicultural society, these are all great additions to the world from India. और अभी अगर modern soft power का बात करें, तो the fact that we have become the 5th largest economy, अभी it's a matter of great pride that we have surpassed. हमारी इकोनॉमी आज ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा है. हमारा जो कॉलोनियल जो मास्टर था उससे हम लोग आगे निकल गए हैं, और बाय 2030 हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी यूएसए और चाइना के बाद. तो ये छोटी बात नहीं है. आप सोचिए 1947 में वी वर 1% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, लेस देन 1%, और हमारे पास इतनी समर्थ नहीं थी कि हम अपने लोगों को खाना खिला सकें. तो आज फ्रॉम दैट point to the point where we are supplying food to the world, we are supplying vaccines to the world, we are supplying medicines to the world. In fact, we are called the pharmacist of the world. So it's a great leap from where we started in 1947. Space में और another aspect of our soft power is our great achievement in the area of space. मंगलयान के बारे में आप सबको पता होगा. आपको पता है कितना खर्च हुआ था मंगलयान? The entire project, only $400 million, 3500 करोड़ रुपया. एक हॉलीवुड की स्टैंडर्ड मूवी का बजट से कम था उसका बजट. And only country in the world which had success in the Mars mission on its first attempt. हम लोग UN Security Council के मेंबर नहीं हैं, लेकिन today India is one of the most prominent member of the UN. You cannot think of any substantial discussion in the global stage without having India on the
प्लेटफॉर्म। कोई भी क्राइसिस ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, कोई भी क्राइसिस ले लीजिए, इंडिया इज ऑलवेज देयर। अभी देखिए टर्की का एग्जांपल देना चाहता हूँ। टर्की इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ इंडिया, इट हैज ऑलवेज साइडेड विद पाकिस्तान on every issue, but despite that we were amongst the first countries to respond to Turkey in its time of need. ऑपरेशन दोस्त आप लोग अभी हाल ही में 2 महीने पहले हुआ था, बहुत बड़ा क्लिक हुआ था जब टर्की में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच आउट टू टर्की। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज। G20 प्रेसिडेंसी बारे में आप सबको ही पता है। सी लोग कहते हैं कि भाई ये तो अल्फाबेटिकली होता है, हर देश जो 20 देश हैं सबको मौका मिलेगा प्रेसिडेंसी का। G20 आज इंडोनेशिया था, आज इंडिया है, नेक्स्ट ईयर इट विल बी अनदर कंट्री, so Italy. So what's so great about India's G20 presidency? The greatness is that, you know, the fact that for the first time G20 का जो theme है, motto है, one earth, one family, one future. That motto resonates with our timeless value, timeless philosophy of our country. वसुधैव कुटुंबकम। आज तक कोई भी G20 को प्रेसिडेंसी में ऐसा नहीं हुआ था that the motto of that presidency coincided with the civilizational values, and countries do not see India as just another president. They truly see that this is a coming out moment for India. ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है कि विश्व गुरु जो हमारा जो हम थे विश्व गुरु, तो ये G20 is that moment which will take India to that विश्व गुरु moment. नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मुझे बता दीजिएगा कितना समय है। तो आज सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। आप देखिए मैंने उदाहरण दिया श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, म्यांमार का। इंडिया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट विच इज नॉर्मली हॉस्टाइल, most of the international media is hostile towards India because they do not want to see India as a rising power. They are in fact jealous. बिकॉज आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखेंगे, बीबीसी को देखेंगे, कैसे वो लोग कह सकते हैं कि आज इंडिया इतना मजबूत होते जा रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इज अ थिंक टैंक व्हिच हैज नॉट बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स इंडियाज ग्रोथ। इवन ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट हैज कॉल्ड द नेशन द नेबरहुड्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जब भी कहीं पे हमारे नेबरहुड में कहीं पे कुछ होता है तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड। एंड मैंने कहा फार्मर्स ऑफ द वर्ल्ड, 200 देशों को, 200 नेशंस रिसीव इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स। कोविड के समय में मास्क, सैनिटाइजर, इंजेक्शंस वर सेंट टू 150 प्लस कंट्रीज। 150 देशों को हमने भेजा है। 96 कंट्रीज रिसीव वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। 96 कंट्रीज वैक्सीन, जो ऑपरेशन मैत्री के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि 2.4 बिलियन 240 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। 240 करोड़। This is the country where everyone thought there will be losses everywhere, you know, there will be dead bodies everywhere. सब US, in fact, Washington Post ने कहा था जब कोविड फर्स्ट वेव शुरू हुआ था that India will be the worst sufferer of COVID and you will have dead bodies lying on the streets of India on record. But you see the way we have handled COVID is envy of the world. Climate leadership, International Solar Alliance हमने किया। Life, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर has articulated his vision of the life, जो अभी हमारा जो गोल है 2070 गोल, जो I've been a bitter critic of the 2070 goal of ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, not because the goal is not great, it's a great goal to have। बहुत अच्छा लक्ष्य है हमारा, 2070 तक हम लोग नेट जीरो बन जाएंगे। लेकिन मेरा ये हमेशा, और पार्लियामेंट में भी मैंने इस बारे में काफी क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को कि लक्ष्य तो आपने दे दिया, लेकिन वेयर इज द रोड मैप, वेयर आर द इंटरिम गोल्स, आपका ब्लूप्रिंट कहाँ है वो गोल पहुंचने में। बट नेवरदलेस वी हैव अ गोल, लेकिन वो गोल के साथ साथ ऑनरेबल पीएम जो उन्होंने कॉप 26 ग्लासगो में कहा था, लाइफ फिलोसॉफी जो उन्होंने दिया दुनिया को, जो गिफ्ट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, छोटी छोटी चीजें हम लोग करके जो अपने जो एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है इंडिया का। सोलर अलायंस के बारे में मैंने बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ मिलकर हमने 2015 में शुरू किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन द एफर्ट इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। इकोनॉमी के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात की है।
अभी हम लोग $5 ट्रिलियन की 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, कुछ दिनों में $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। 2 मिनट और दूंगा बस। कुछ चैलेंजेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जो हमारी बहुत बड़ी जो हमारी आज ताकत है, ये है हमारी डेमोक्रेसी। 3 Ds जो कहते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के बारे में आप सबको पता ही है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, only major country rather that has been a continuous democracy except for 1975 to 77, the unfortunate period of Indian history, post independent history। उसको छोड़ के, वो 2 साल को छोड़ के हम लोग we are a functioning democracy। but demography में हमारा population is now 140 crore, 1.4 billion। उसमें से 2/3 of our population is under 35। 35 साल से नीचे हमारा population 66% है। 25 साल से नीचे हमारा पॉपुलेशन 50% है। आधा पॉपुलेशन हमारा 25 साल से कम है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन दैट वर्किंग एज बिटवीन 15 टू 59, 15 से 60 साल। अगर आप ये पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अगर इसको आप ठीक से, अगर डू नॉट लेवरेज दिस पॉपुलेशन, अगर इसको आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे, then this will become a demographic liability for us। तो ये मुझे लगता है कि this is a great challenge for the country। और मैं देख नहीं रहा हूँ उस दिशा में सरकार या फिर कोई भी सरकार हो यहाँ पे, because you mentioned that it's not a political platform, I'm taking the liberty to be open-minded and give constructive criticism। We have 2 crore people, 2 crore youth joining the workforce. Where are the jobs? Where are the job opportunities? I don't see that happening। I think this is the single biggest critic of mine of this government, that we are not doing enough to generate jobs। Yes, we have many flagship schemes, but ये मुझे लगता है बहुत बड़ा concern है। The demography, how do you handle the demography? R&D और एक बहुत बड़ा challenge जो मैं हमेशा कहता हूँ पार्लियामेंट में, I'm one of the few MPs who has been constantly attacking the government on this। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे हमारा खर्च है only 0.7% हमारा GDP। अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, जब तक आप रिसर्च पे खर्च नहीं करेंगे, तब तक आप विश्वगुरु का सपना देख सकते हैं, लेकिन विश्वगुरु बन नहीं सकते। आप कोई भी देश से कंपेयर कीजिए, चाइना जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, चाइना स्पेंड्स 3.2, USA स्पेंड्स 3.2, इजराइल स्पेंड्स 4.8। Today, this is why Israel is a innovation hub, it's one of the innovation capital। तो अगर जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के लिए। और बाकी जो दूसरा बड़ा चैलेंज है हमारा, जो बॉर्डर्स हैं, देयर इज ए रियल पॉसिबिलिटी ऑफ ए 2-front वॉर। इसके लिए डेफिनेटली देयर इज थिंकिंग इन द गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा एसर्टिव होना चाहिए। पता नहीं क्यों, मतलब I do understand that we are not in a state where we can directly confront China, but थोड़ा सा और assertiveness होना चाहिए। वहाँ से मुझे चैलेंज दिख रहा है और बहुत सुंदर विषय है। तो hopefully I have given some food for